Good afternoon, everyone. I welcome you all to our today's webinar on role of media during COVID-19. I am Sakshi Shah, a student of BJMC. On behalf of Department of Journalism and Mass Communication, Chhatrapati Shivaji Maharaj University, I would like to welcome our honorable speaker of the day, Professor Sanjeev Bhanawat sir, who is not bound to any introduction and is the well-known personality in the journalism and media community, and his work has inspired all of us. I would also like to welcome our President Dr. Keshav Badaya, Vice Chancellor Dr. A.K. Sinha, Registrar Dr. R.P. Sharma, Organizer and HOD Mrs. Sushma Sharma, HOD Dr. Anirudh Sakre, and all the participants. The webinar is on the role of media during COVID-19. As we all know, the COVID-19 pandemic has affected our daily lives to a great extent. And during this tough time, media has played a very crucial role. Today's webinar has been organized by the Department of Journalism and Mass Communication, CSMU, to make us understand and appreciate media's role during this pandemic. Chhatrapati Shivaji Maharaj University was established with a vision and mission to impart quality education in all spheres of high education in India. The university offers degrees, diploma, and certificate programs in various disciplines of engineering, architecture, science, life science, biotechnology, commerce, management, hospitality, law, liberty arts, humanities, social science, mass media, creative arts, film studies, and fashion technology, and many more. The Department of Journalism and Mass Communication has emerged as a pioneer in the transformation of information, knowledge, and creation of support system. The institute provides wide array of opportunities via reporter, editor, journalist, photo journalist, and public relations specialist. Now I would like to call our head of department and organizer of this webinar, Mrs. Sushma Sharma, to introduce our speaker of the day, Professor Sanjeev Bhanawat sir.
Good afternoon, everyone. This is Mrs. Sushma Sharma, Head of Department of Journalism and Mass Communication. With a great joy and pleasure, I extend my warm welcome to you all. I feel honored to introduce our Honorable Speaker of the Day, Professor Dr. Sanjeev Bhanawat, sir. Professor Dr. Sanjeev Bhanawat, former head and professor, Center for Mass Communication, former honorary director, Center for Gen Studies, and former honorary director, Administrative Service, Pre and professional teacher and author in the field of journalism and mass communication. Professor Bhanawat is a meritorious student, completed his MA Literature, PhD diploma in journalism from Rajasthan University. He started his career as a lecturer in a state education service in Rajasthan and joined as a lecturer in journalism in January 1982 at Rajasthan University. Professor Bhanawat has been acknowledged as an architect for the growth and the development of media education, bachelor's and master's degrees courses and PhD programs in Rajasthan University under Center for Mass Communication. Professor Bhanawat has guided 30 scholars for their PhD degree. He has also the member of Senate Academic Council and convener, Committee of Courses of University of Rajasthan. He has been associated with a number of academic institutions and universities in various prestigious positions. He has been recipient of various awards like Radha Krishnan Keetan Golden Medal Award. In his entire life, there is a lot of awards he has won. He has also been honored by a Public Relations Society of India and India Foundation for PR Education and Research for his meritorious research in journalism. Media Guru Award by Newspapers Association of India, Delhi and Hall of Fame Award by Public Relations Council of India. He has edited and written about 30 books related to journalism and mass communication. Professor Bhanawat is the editor of Quarterly Media Journal, Communication Today since 1997, which is considered as a premier journal in the field of mass communication research. He has visited Colombo in 1996 in an international conference of media educators of South Asian countries. He has also presented a paper in the World Hindi Conference held at New York in 2007. He has been to Beijing, Shanghai, and Xi'an to study the status of media education in China. He has established an advanced research center at his residence in the memory of his parents, late Professor Narendra Bhanawat, former head Department of Hindi, University of Rajasthan, and late Dr. Shanta Bhanawat, former principal, Veer Balika College, Jaipur. The center is having a rich collection of more than 13,000 books. I welcome you, sir, on behalf of Journalism and Mass Communication Department and Chhatrapati Shivaji Maharaj University. Welcome, sir. Over to you, sir. आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस वेबिनार में। धन्यवाद बहुत-बहुत सुषमा आपके इस आत्मीय और विस्तृत परिचय के लिए, और सर्वथा एक नए तरीके से साथ में जो आपने मेरा प्रिय फोटोग्राफ है फ्रॉम 1964 टू 2021 किस तरह से व्यक्ति में बदलाव आते हैं जी। सबसे पहले तो मैं छत्रपति शिवाजी विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों का, पत्रकारिता विभाग का, विशेषकर कुलपति प्रोफेसर A.K. सिन्हा जी के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे एक अवसर दिया विभाग के विद्यार्थियों के साथ संवाद करने का। प्रोफेसर A.K. सिन्हा के साथ एक बहुत लंबी पारी विश्वविद्यालय में रही।
जब वो राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते थे, विश्वविद्यालय की अनेक समितियों में और अनेक आयोजनों में उनके साथ रह करके उनकी न सिर्फ अकादमिक वरन प्रशासनिक क्षमताओं को भी बहुत निकटता से देखा और महसूस किया है। प्रोफेसर सिन्हा एक हंसमुख व्यक्तित्व के धनी रहे हैं और जब भी कभी इनसे मुलाकात होती थी तो मुझे लगता है कि वो हंसी ठहाके आज भी याद आते हैं, जिस तरह से हम अपने उस समय को एंजॉय किया करते थे। और ये प्रसन्नता की बात है कि आज उनका नेतृत्व इस विश्वविद्यालय को मिल रहा है और पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी में अकादमिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में और शोध अनुसंधान के क्षेत्र में जो नए प्रतिमान कायम किए थे, उनका लाभ इस विश्वविद्यालय को भी उनके बम्बई प्रवास के दौरान अवश्य मिलता रहेगा। मैं उनके प्रति भी अपना अनुग्रह प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे एक अवसर दिया इस संवाद को आगे बढ़ाने का। जहां तक विभागाध्यक्ष सुषमा शर्मा की बात है, हालांकि इनसे परिचय मेरा इनकी जो शोध यात्रा शुरू हुई तभी के साथ है, लेकिन फिर भी इनकी लगन, निष्ठा और कार्य करने की ऊर्जा और उत्साह और उमंग, इसको बहुत निकटता से मैंने महसूस किया है। किस तरह से इन सारी चुनौतियों के बीच में इन्होंने जयपुर में भी विल्फ्रेड कॉलेज के जैसा जब कभी बात हुई है, वहाँ की विद्यार्थी थी, क्योंकि विल्फ्रेड कॉलेज जो जयपुर का है उनके साथ भी मेरा पुराना संबंध है, केशव बड़ाया जी के साथ भी। उनके महाविद्यालय में मुझे समय समय पर अवसर मिलता रहा, जब न सिर्फ पत्रकारिता पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट किया, बल्कि उनके अन्य आयोजनों में भी मुझे यदा कदा ऐसे अवसर मिलते रहे। तो केशव बड़ाया जी ने जिस तरह से जयपुर और बम्बई में महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया है, अपने समर्पित भाव से प्रयास कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि उनके दूरदर्शी सोच का ही एक परिचायक है। तो सुषमा को विद्यार्थी जीवन में उनके एक औपचारिक सा बातचीत कभी रही जब ये पढ़ती थी, लेकिन जब इन्होंने शोध यात्रा शुरू की उस समय इनके उन क्षमताओं को, उनके उस उमंग उत्साह को महसूस करने का, देखने का, और अब इस माया नगरी में, बम्बई को तो हम माया नगरी कहते हैं, वहाँ जिस तरह से ये अपने इस विभाग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रही हैं, हमारी शुभकामनाएं, बधाई। और मुख्य रूप से ये मान के चलता हूँ कि इस आयोजन में, इस आभासीय मंच पे, क्योंकि ये जो दौर है, जो कोरोना ने जिस तरह से हमको, मेरा विषय भी यही है, कोविड-19 और मीडिया की भूमिका, तो कोरोना ने जिस तरह से हमें अपने घरों में कैद कर दिया है। दूसरा दौर, हालांकि महाराष्ट्र, कल शाम को जब मैं टीवी देख रहा था तो कुछ इस तरह की खबरें सुनने देखने को मिली कि महाराष्ट्र कहीं तीसरी लहर के दस्तक तो नहीं मिल रही है। वहाँ जिस तरह से उतार चढ़ाव आ रहा है, तो जो तैयारियां सरकार ने की है, प्रशासनिक स्तर पर हुई है, उसकी भी चर्चा की जा रही थी, विशेषकर बच्चों को लेकर के। तो कोरोना ने जिस तरह से हमें अपने घरों में कैद कर दिया, कभी कभी विशेषकर युवाओं को, विद्यार्थियों को ये लगने लगा कि हमारे अकादमिक करियर का क्या होगा, भविष्य की संभावनाएं क्या होंगी। ऐसे दौर में शायद ये तकनीक ही हमारे सामने एक चमत्कार लेकर के आई है। शायद हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस आभासीय मंच के माध्यम से हम न सिर्फ अपने शहर के, न सिर्फ प्रदेश के, न सिर्फ देश के, वरन दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए हैं, इस आभासीय मंच के माध्यम से हम अपने उस शैक्षणिक विचार विमर्श को निरंतर बनाए रख सकते हैं। ये मुझे लगता है कि मानवीय आस्था, मानवीय जुनून, मानवीय जिजीविषा की सदी भी है कि जब सब कुछ थम गया था, पहली लहर जब आई थी कोरोना की, उस समय ट्रेन के पहिए रुक गए, हवाई जहाजों ने उड़ान भरनी बंद कर दी, हमारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संपूर्ण परिदृश्य जैसे थम सा गया हो। उस दौर में भी हमने अपने इस जीवन की पतवार को, जीवन की नैया को किसी न किसी तरह से इन सारी चुनौतियों में, झंझावातों में, कितने परिवारों पर कोरोना ने प्रहार किए, कितने पत्रकारों ने अपने कर्म पथ पर अपना बलिदान दिया, इन सारी चुनौतियों के बीच में भी हमने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह से हमारी इस पूरी
जीवन यात्रा को, हमारे शैक्षणिक कार्यक्रमों को हमने बनाए रखा। वर्क फ्रॉम होम के नए कॉन्सेप्ट हमारे सामने आए। दूसरी लहर की समाप्ति के दौर पर हम खड़े हैं, तीसरी लहर की आशंका हमारे सामने है। मैं बात करूंगा इस पूरे पिछले 1.5 साल के दौर में जिस तरह से मीडिया की भूमिका रही है, और अब जब हम तीसरी लहर की आशंका से त्रस्त और ग्रस्त हैं, उस समय मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, पोस्ट कोविड पीरियड में हम क्या कर सकते हैं। मैं कुछ उन मुद्दों की आपसे बातचीत करूंगा, और फिर इन विद्यार्थियों के मन में कोई भी इस तरह की शंका हो, कुछ जिज्ञासा हो, तो जो कुछ मेरा अनुभव है वो आपके साथ शेयर करने का मैं प्रयत्न करूँगा। वस्तुतः हम सब वो क्षण नहीं भूले होंगे। हो सकता है आपके फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हो उस समय, सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हो उस समय, वो स्कूल के विद्यार्थी होंगे, उन्हें याद होगा इसे हम कोविड-19 क्यों कहते हैं। 19 में ये बीमारी पकड़ में आई थी, जैसा कि आरोप है कि चीन में सबसे पहले वुहान शहर से ये वायरस जो है, ये विषाणु जो है, वो विश्वव्यापी होना शुरू हुआ। इसलिए इसे कोविड-19 कहा जाता है। कोविड को मतलब कोरोना, VI वायरस, D डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज, इसको हमने डिटेक्ट किया 2019 में, इसलिए इसे कोविड-19 कहना पड़ा। ये जो पेंडेमिक, जिसको आप महामारी कहते हैं, पेंडेमिक और एपिडेमिक, एपिडेमिक जो एक स्थान क्षेत्र तक सीमित रहती है, वो महामारी बहुत व्यापक क्षेत्र में नहीं होती है। लेकिन पेंडेमिक का अभिप्राय है एक वैश्विक महामारी जिसने उन भौगोलिक दूरियों को तोड़ते हुए पूरी दुनिया को एक तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। तो ये जो कोविड बीमारी है, ये जो वायरस का प्रहार हुआ है, इसने ना देश देखा, न भौगोलिक सीमाएं देखी, न वर्ग देखा, न जाति देखी, न रंग देखा। इसने पूरी सभ्यता और संस्कृति को एक तरह से प्रभावित किया है, इस पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब ये चर्चाएं होती रहेंगी, इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा। अमेरिका ने बाकायदा इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश की, अपनी इंटेलिजेंस को कहा कि वो इस बात की जानकारी लें कि चाइना ने किस तरह से इस बीमारी का, इस वायरस को लैब में एक तरह से निर्मित किया गया है, मानव निर्मित ये है। तो इसने एक तरह से हमारे भविष्य के लिए भी एक तरह से संकट खड़ा कर दिया है। यदि इस तरह के जैविक हथियारों की यदि तैयारी हो जाती है, तो आने वाले समय में मानवीय सभ्यता, मानवीय अस्तित्व के सामने क्या क्या चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों के सामने ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये भी पहली बार हुआ है कि इस कोरोना के दौर में हमारे वैज्ञानिकों ने, जहां टीके बनने में सालों लगते थे, सालों उस पर रिसर्च होती थी, अनुसंधान होते थे, ट्रायल्स होते थे, लेकिन न्यूनतम समय में जिस तरह से हमारे पास ये वैक्सीन उपलब्ध हुई हैं, ये भी मुझे लगता है कि देश दुनिया के, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी जिस तरह से पहल की है, और प्रधानमंत्री ने स्वयं ने प्रशंसा की है हमारी उस वैज्ञानिक प्रतिभा की, कि किस तरह से वैज्ञानिकों ने कम समय में एक तरह से जीवन दायिनी जो ये टीके हैं, वो इस देश की जनता को और दुनिया को उपलब्ध कराने की दिशा में एक रास्ता खोला है। तो शायद 11 मार्च, यदि मुझे सही याद है, तो 11 मार्च 2020 का वो समय था जब WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे एक वैश्विक महामारी घोषित किया था। ये वैश्विक महामारी जब WHO ने घोषित किया, उस समय देखिए, हमारे ऐसा नहीं है कि ये विपदाएं हमारे पास पहली बार आई। मानवीय सभ्यता के इतिहास में ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही। देश दुनिया ने बहुत सारे साइक्लोन देखे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं। कोरोना पीरियड में भी हमारे देश को ऐसे 3-4 अवसर आए जब इन साइक्लोन या तूफान से का सामना करना पड़ा। दुनिया के अनेक देशों ने इसका सामना किया। भूकंप, तो इस तरह की जो सुनामियां आई, तूफान आए, भूकंप आए, अग्नि दुर्घटनाएं हुई, ज्वालामुखी फूटे, न जाने कितनी तरह की इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं मानवीय इतिहास में आई। लेकिन इन सब की रिपोर्टिंग के लिए हमारे पास कहीं न कहीं इसका एक आधार था, जिसके आधार पर हमें पता है कि किस तरह के रिलीफ ऑपरेशंस, बचाव की तैयारी की गई, कितने लोग हताहत हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई, हताहतों को कौन से अस्पताल में भेजा गया, सरकारी एजेंसीज ने किस तरह से सहायता शिविर लगाए, किस तरह से कंपनसेशन दिए, इन सब की जानकारी मीडिया जो है वो देता था।
किस तरह के हेल्पलाइन के नंबर कहाँ दिए गए, कितना नुकसान हुआ, बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए, क्या क्या तैयारियां की गई, आज जो हमारी ये जो नेशनल डिजास्टर यूनिट्स हैं इन्होंने क्या क्या तैयारियां की, ये सब लगभग मीडिया को इस बात की जानकारी है और वो जानकारियां देते रहे हैं और आगे भी मुझे लगता है कि उन सारे जो भी हमारे प्रतिमान हैं उनके ऊपर वो चीज़ें। लेकिन एक टेररिज्म अटैक भी हुआ था इस देश में, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उस समय भी पूरा मीडिया दिग्भ्रमित था। दिग्भ्रमित इसलिए कि जब बॉम्बे में, आपका शहर तो इसको भुगत चुका है, जब वो लाइव टेलीकास्ट किया गया था उस समय भी मीडिया की भूमिका को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे। उस समय हमारे पास कोई इस तरह के आइडिया नहीं था कि जब इस तरह के आतंकी अटैक हो रहे हैं तो हम किन नियमों और उपनियमों की परिपालना करें। यही स्थिति इस कोविड-19 के समय आई जब मीडिया दिग्भ्रमित था। आप कल्पना कीजिए उस पहली वेव में जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तुरंत लॉकडाउन घोषित कर दिया कि सब कुछ थम जाएगा, हम घरों में कैद हो गए, लक्ष्मण रेखा खींच दी गई हमारे चारों ओर कि बाहर नहीं निकल सकते। उम्मीद थी कि शायद लॉकडाउन इस कोरोना को खत्म कर देगा। वो टोटके भी किए गए, थालियां भी बजाई, मोमबत्तियां भी जलाई, सब कुछ किया प्रधानमंत्री के उस आह्वान पे, शायद हमारा मनोबल कहीं बढ़ सके, उसके लिए सारी तैयारियां की गई। अब आप कल्पना कीजिए जब हम एक आशंका से ग्रस्त थे, जब हम घर से बाहर निकलते हुए डरते थे, बाहर निकलने की बात छोड़िए, हम किसी चीज के हाथ में लगाते थे तो मन में भयभीत होते थे कि हम कहीं कोरोना संक्रमित न हो जाए। कितनी बड़ी चुनौती हमारे सामने हो गई थी। हम हमारे कल को लेकर के कितने चिंतित थे, आशंकित थे। घर के दरवाजा खोलते समय घर में यदि कोई कोरियर वाला आ गया, कोई सामान की सप्लाई करने आ गया या कोई मैकेनिक आ गया तो बाद में हम उन दरवाजे और कुंडियों को साबुन के पानी से धोते रहते थे। एक तरह की मानसिक बीमारी हो गई थी कि लगातार हाथों को धोते रहिए। आप कल्पना कीजिए, एक दौर था जब हम छोटे थे, हमारे बहुत सारे जो यहाँ वरिष्ठ साथी हैं या जो बच्चे हैं वो भी इस बात को जानते होंगे, कभी कभी जब हम बीमार पड़ते थे, बुखार होता था, जब हमारा मित्र आता तो हमें कितना एक आनंद की अनुभूति होती थी। उसके जाते ही फिर हमारे वो सारे दर्द शुरू हो जाते थे। अर्थात इन सारी व्याधियों के बीच में जब हमारा कोई आत्मीय व्यक्ति आता था तो हमें एक संबंध मिलता था। एक परंपरा थी कि हम बीमारग्रस्त व्यक्ति को देखने के लिए जाते थे, फूलों का गुलदस्ता लेकर के जाते थे, उसके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते थे। लेकिन एक ऐसा प्राकृतिक प्रकोप आता है, अब हम आत्मीय से आत्मीय व्यक्ति, और तो छोड़िए घर के लोग ही दूर भागने लग गए, आइसोलेशन में डाल दिया। आप कल्पना कीजिए उस मनस्थिति की जिस व्यक्ति को 14 दिन के लिए आपने कमरे में बंद कर दिया है। ऐसे दौर में उन मीडिया कर्मियों से हमें यह अपेक्षा थी, क्योंकि हमें यह नहीं पता था, रोज नई नई रिसर्च हो रही है, रोज नई नई शोध अनुसंधान किए जा रहे हैं। कभी लगता है कपड़े का मास्क वो पर्याप्त है, नहीं, दूसरे दिन फिर खबर आती है नहीं नहीं सर्जिकल मास्क पहनना है, N95 का मास्क पहनना है। कितनी तरह की हमारे सामने रोज नई सूचनाएं आ रही हैं। एक दौर था पिछली वेव में 2 गज की दूरी, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे गिर रही हैं, बचाव हो जाएगा। दूसरी वेव आई, एक नई थ्योरी आ गई, हवा में घूम रहा है, ये कब आप पर वार कर देगा, आप डबल मास्क पहन करके निकलिए। तो कहने का मतलब ये कि नित्य नई शोध आ रही है, हम सब दिग्भ्रमित हैं। ऐसे दौर में मुझे लगता है मीडिया की भूमिका को लेकर के कई प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। पिछले लगभग 10-12 महीनों के अंदर न जाने कितनी वेबिनार्स में हमने पार्टिसिपेट किया, सवाल जवाब हुए और मीडिया की भूमिका को लेकर के भी टिप्पणियां होती रही। आपने कई व्हाट्सएप मैसेजेस देखे होंगे जहां मीडिया की भूमिका को क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि उस दौर में जब सूचनाएं मिलना मुश्किल हो गया था, हमारे पास हमारे सोर्सेस तक पहुंचना मुश्किल हो गया था, वर्क फ्रॉम होम, अखबार जो हमारे रिपोर्टर्स थे वो भी, विशेषकर जो एडिटोरियल डेस्क थी हमारी, वो घर से अखबार के पेजेस तैयार कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती थी सही और सटीक सूचनाएं देने की, विश्वसनीय सूचनाएं देने की। और इस सोशल मीडिया के दौर में, जिसकी बात अभी मैं करूंगा, जो फेक न्यूज का दौर चला, जिस तरह से हर व्यक्ति अपनी चिकित्साई सलाह दे रहा है कि आप काढ़ा पीजिए तो ये होगा, फलाना खाइए तो ये होगा, वो कीजिए, ये एक्सरसाइज कीजिए, जाने कितनी तरह के उपाय आपको बताए जा रहे हैं। हम सब दिग्भ्रमित हो गए थे। ऐसे दौर में मुझे लगता है कि मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और इन मीडिया कर्मियों ने अपनी जान पर खेल करके
अपनी, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, एक समय था, अभी भी कोई हम उससे मुक्ति नहीं मिली है, जब शाम को एक मेल आता था और ये कहा, मेरे कितने विद्यार्थियों की नौकरियां चली गई कि कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आर्थिक गतिविधियां सिमट गई थी। टूरिज्म सेक्टर बंद हो गया, पीआर एक्सरसाइज बंद हो गई, पीआर कंपनियों पर प्रहार होने लगा। मेरे कितने विद्यार्थियों की अपनी पीआर एजेंसीज थी, इवेंट्स होने बंद हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन होने लगी। प्रतिदिन 4 बजे फर्स्ट वेव के समय दिल्ली में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो विद्यार्थी थोड़े सीनियर हैं, 3rd ईयर में या उसमें होंगे या पीजी कर रहे होंगे, तो आपको मालूम होगा कि पीआईबी भारत सरकार की एक एजेंसी है जो सूचना देने का काम करती है मीडिया को। पीआईबी की तरफ से प्रतिदिन शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती थी, जिसमें सारे मीडिया कर्मी आते थे, वो सवाल पूछते थे, उनको सूचनाएं दी जाती थी। उस समय भारत सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो आते थे, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि आते थे, आईसीएमआर के प्रतिनिधि आते थे, और वो बताते थे कि आज दिन में किस तरह की हमारी स्थिति रही, हमने क्या क्या तैयारियां की है, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं शर्मराने लगी, इस दौर में कैसे सरकार बेहतर अपने सीमित संसाधनों में राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर क्या क्या तैयारियां की जा रही है, क्योंकि हमारे पास माध्यम एक ही रह गया था, ऑफिशियल सोर्सेस, क्योंकि आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया। पत्रकार के नाते ठीक है, आपको कुछ सुविधाएं थी, आप बाहर निकल सकते थे। जब लॉकडाउन हो गया तो आपको उन एरियाज में जाने की अनुमति थी, आप सूचनाएं कलेक्ट कर सकते थे, लोगों के हालात किस तरह के हैं, उनकी मानसिकता किस तरह की है, वो, क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी है ये कि वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जिन पर ये जिम्मेदारी है कि वो कानून की क्रियान्विति करें, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था को की क्रियान्विति करने वाली जो एजेंसीज हैं, उनको जानकारी देने के लिए, क्योंकि मीडिया पुल का काम करता है, जन व्यथा को, जन पीड़ा को उनको बताने के लिए कुछ पत्रकारों ने कोशिश की। आप सोचिए कितना बड़ा खतरा उनके सामने होगा कि वो उन एरियाज में जा रहे हैं जहां अधिकतम लोग संक्रमित हो रहे हैं। वो दौर था जब संक्रमित व्यक्ति के घर के बाहर लगा दिया जाता था, ऐसा मानते थे कि वो उपेक्षित है, क्षमा कीजिए शब्द का उपयोग कर रहा हूं, कि वो जैसे अछूत मानने लग गए थे, पुलिस के पहरे बैठा दिए जाते थे। किस मानसिक अवसाद के दौर से उस समय हम लोग गुजर रहे थे। उस समय वो मीडिया कर्मी, जिनकी एक के बाद एक नौकरियां चली जाती रही, एक के बाद एक उनकी, क्योंकि उस समय ना तो कोई ये पता था कि कौन सी दवाएं आपको हेल्प करने वाली है, आपके ना संपर्क काम आ रहे थे, ना आपका पद काम आ रहा था, ना आपका अधिकार काम में आ रहे थे। ऐसे दौर में जाने कितने पत्रकार, जिस फ्रंट लाइन वर्कर्स की आप बात करते हैं, जिन चिकित्सकों ने इस दौर में इतनी बड़ी मानवीय सेवा की, ठीक है कुछ परसेंट वहाँ ऐसे भी उदाहरण होंगे जहां लोगों ने आपदा में अवसर बनाने का एक ऐसा प्रयास किया जो व्यक्तिगत हितों का पोषण करता है। ये प्रयत्न भी हुए, नो डाउट, लेकिन बाई एंड लार्ज इस देश के जो अलग अलग वर्गों के लोग थे, कई लोगों ने राशन पहुंचाया, एनजीओज ने, वो समय था, हालांकि लॉकडाउन में सरकार ने भी तैयारी की, आप कल्पना कीजिए अचानक मास्क की बात जब चली, मास्क नहीं थे हमारे पास, एनजीओज ने किस तरह से मास्क बनाने का काम शुरू किया, और इन एनजीओज में वो महिलाएं जो एक पूरे अभियान के रूप में जुड़ जाती हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन भारत सरकार का जो ये यूनिट है, इसने उन इस तरह के एनजीओज के प्रयासों पर फीचर लिखना शुरू किया, उन अखबारों के माध्यम से ये फीचर स्टोरीज प्रसारित की। हमारे देश की अपनी सीमाएं हैं, 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या, एक अपने छोटे से प्रदेश, आपकी बॉम्बे जो शहर की जनसंख्या होगी वो तो कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा होगी। तो आप कल्पना कीजिए इतने बड़े देश की इस व्यवस्था को संभालना, और तुलनात्मक दृष्टि से विदेशी जो बड़े बड़े सुपर पावर्स हैं, जिनका हेल्थ सिस्टम बहुत बढ़िया है, कहीं उनसे भी बेहतर स्थिति हमारी रही मृत्यु दर के संबंध में। ये भले ही हमारी इम्यूनिटी की बात हो, बहुत सारी चुनौतियों के बीच में शायद हमारे संकल्प का परिणाम हो, हमने इस चुनौती का सामना किया। तो हमारे इन पत्रकार मित्रों ने अपने जीवन, अपनी नौकरी और कम सैलरी, सैलरी कट तो वहां भी हो रहा था, उसके बावजूद इस जनता के मनोबल को कायम रखने के लिए, आप सोचिए उस दौर में, मैं पहली वेव की बात कर रहा हूं अभी, जब टेलीविजन के ऊपर दुनिया भर के ये तकनीक ने हमको सुविधा दी, लंदन के डॉक्टर्स कैसे अपने देश के अंदर इस चुनौती से निपट रहे हैं, अमेरिका के डॉक्टर्स क्या तैयारी कर रहे हैं, इवन कुछ चैनल्स ने चाइना में जो हमारे हिंदुस्तानी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनको कनेक्ट किया और जनता को आह्वान किया
कि आप सीधे प्रश्न पूछिए, आप ट्वीट करके सवाल पूछ सकते हैं, आप उनको वीडियो से सवाल पूछ सकते हैं, आप उनको मेल कर सकते हैं। कितने ऑप्शंस आपको दिए, उनके माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। तो वो सारी जानकारियां जो हैं वो मीडिया ने अपडेट किया। महीने, 2 महीने, 3 महीने में हमें ये विश्वास आ गया कि हमारे पास अब न्यूनतम जानकारी है कि इस विषाणु का, इस वायरस का सामना करने के लिए हमको क्या तैयारी करनी है, हमें मास्क कैसे पहनना है। मैं जानता हूं हमारे कई विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने छोटे छोटे वीडियो बनाए, मास्क कैसे पहनेंगे। मास्क फैशन की वस्तु नहीं है कि आपने यहाँ लगा लिया और नाक के नीचे है, या आपने अपने ठुड्डी के नीचे मास्क पहन लिया। नहीं, मास्क आपके जीवन को बचाने के लिए है। उसको कैसे पहनेंगे, क्या क्या सावधानी रखेंगे, छोटे छोटे वीडियोस, क्योंकि यूट्यूब ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, कितनी बड़ी ताकत इस तकनीक ने आज आम आदमी को उपलब्ध करा दी है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब रचनात्मक प्रतिभा के लोग संचार माध्यमों के साथ जुड़ेंगे तो जो प्रश्न आप उठाते हैं मीडिया की भूमिका को लेकर के, उसमें से बहुतों के उत्तर तो अपने आप मिल जाएंगे। तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस दिशा में प्रयास किए, जब उन्होंने इन छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से जागरूकता फैलाई। पीआईबी की वेबसाइट पर जाइए आप, पीआई की वेबसाइट पे इतने बढ़िया बढ़िया वीडियो, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, इतने म्यूजिकल, कितने वीडियो हमारी जो फोक ट्यून्स हैं उस पर केंद्रित बनाए गए। हाथों को कैसे धोए जाए, हाथ ऐसा नहीं कि साबुन लगा के ऐसे ऐसे कर लिया, नहीं, आपको 20 सेकंड तक, 30 सेकंड तक हाथ धोने हैं। किस तरह की उंगलियों के जो बीच में आप वो डाल करके पूरे हाथ को धोने का ये सिस्टम मीडिया ने बताया। क्योंकि इस देश में अभी भी साक्षरता पूरी नहीं है, अभी भी हमारे यहाँ लोग जागरूक नहीं है। आप कल्पना कीजिए, जिस देश में आजादी के 70 साल बाद एक अभियान चलाना पड़ता हो घर घर में टॉयलेट बनाने का। हमारे जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, आकाशवाणी, दूरदर्शन, वहां पर लंबे समय तक विज्ञापन आते रहे, खाना खाने के पहले हाथों को धोइए। इसका मतलब इस देश की आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं की पूरी अवेयरनेस नहीं है। मैंने 3 साल तक यूनिसेफ के साथ काम किया अपने डिपार्टमेंट में, राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ। गाँवों में जाकर, हम तो डूंगरपुर जैसे हमारे रिमोट एरियाज हैं, वहाँ 15 MLAs को लेकर के गए और उनको बताया कि सरकार की जो नीति है टॉयलेट निर्माण की, है ना, तो उसकी क्या क्या स्थितियां हैं वहाँ ग्राउंड पे जाकर के। बच्चों के पोषण को लेकर के, कितनी सारी चीज़ों को लेकर के यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज काम कर रही हैं। 3 साल तक हमने डेवलपमेंट जर्नलिज्म के अलग अलग एस्पेक्ट पर काम किया। इसलिए मुझे लगता है कि मीडिया कर्मियों ने ऐसे दौर में, जब हम अंधकार में थे, हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना है, हमारा अगला कदम क्या होगा, मीडिया की रिपोर्ट्स जो है मुझे लगता है उस मोमबत्ती की रोशनी की तरह है जो आपको एनलाइटन करती है। ऐसा नहीं है कि अफवाहों को खबर बना करके आप प्रसारित कर दें। कुछ चैनल्स पर आरोप है ये भी, और अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कि 3 चैनल्स पर, शायद टाइम्स नाउ, न्यूज 18 कुछ और एक है, कोई साउथ का है, कौन सा है, उन 3 चैनल्स पर 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी की गई है गलत रिपोर्टिंग के लिए। और उनसे ये कहा गया है कि आप माफी मांगिए अपने चैनल के ऊपर। जो ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है उसको दंडित करने की ताकत है, उनके पास पावर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अननोटिस हैं, लेकिन मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा हूँ। बाई एंड लार्ज टेलीविजन चैनल्स ने जिस तरह से, अभी भी ऐसा ये नहीं है कि मुहिम छोड़ दी गई है, अभी भी एक चैनल पर मैं देखता हूँ टीकाकरण को लेकर के कितने भ्रम है कुछ रिमोट एरियाज में। कैसे लोगों को अवेयर किया जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, इस पर मुझे लगता है बहुआयामी आक्रमण की जरूरत है। चाहे वो न्यूज़पेपर हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो रेडियो है, टेलीविजन है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया की जब बात निकलती है तब, बल्कि मैं तो सोशल नहीं, इसको मैं तो कहता हूँ डिजिटल मीडिया, क्योंकि यदि ये सोशल मीडिया है तो क्या अखबार, टेलीविजन और दूसरे चैनल जो हैं, क्या वो एंटी सोशल है? नहीं, उनके पीछे भी सामाजिकता का भाव है। सोशल हमने इसलिए कह दिया कि जैसे गांव की चौपाल पर हम बैठ के मिलते थे, तो इंटरनेट ने सुविधा दे दी है कि हम आपस में बात कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया तुरंत हो सकती है। लेकिन जिस तरह से अब नए नए रास्ते हमारे सामने खुल गए हैं, क्योंकि जो पीरियड था लॉकडाउन का, चाहे वो फर्स्ट वेव में रहा हो चाहे सेकेंड वेव में रहा हो, उस लॉकडाउन के पीरियड में हमारा मीडिया कंजम्पशन बढ़ गया। इस देश में 1 लाख से अधिक समाचार पत्र हैं,
900 से ऊपर टेलीविजन है, उन 1 लाख से अधिक पत्र पत्रिकाओं में करीब 18,000 के आसपास दैनिक पत्र होंगे। और ये जो 900 चैनल्स हैं, इसमें निजी चैनल्स भी हैं, सरकारी चैनल भी हैं, और FM फिर रेडियो के चैनल्स आ गए। ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। हमारा कंजम्पशन इस पर बढ़ता चला गया। अब हमको सूचनाओं की, मनोरंजन की आवश्यकता थी ऐसे दौर में, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि वो अवसाद का दौर था। आपने पढ़ा होगा कुछ ऐसी घटनाएं, दुखद घटनाएं घड़ी कि लोग घबरा करके छतों से कूद गए, अस्पतालों से कूद गए कि कोरोना पता नहीं कहाँ ले जाएगा, कितने परिवारों को प्रभावित करेगा। उस अवसाद से बच्चों की कल्पना कीजिए आप, वो छोटे छोटे बच्चे जो कहीं बाहर खेल कूद करके अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। NCERT ने बाकायदा एक प्रकाशन किया, यूनिसेफ ने, कैसे बच्चों की परवरिश की जाए। 101 पेज का डॉक्यूमेंट है, किस तरह से उनके मनोबल को बनाया जाए। तो इस तरह से जब हम एक अवसाद, पीड़ा के दौर में, क्योंकि ये सही है कि मीडिया की लगातार कवरेज से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा, ऐसे दौर में मीडिया ने, कई अखबार ऐसे हैं, मैं तो रेगुलर इन अखबारों को पढ़ता हूँ, जिनके संपादकीय पृष्ठ पर आपको ऐसी सामग्री मिलेगी जो कहीं आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, आपके उस खुशी, उत्साह, रोज वो एक्सरसाइज के तरीके छाप रहे हैं कि किस तरह से आप 5 मिनट एक्सरसाइज कीजिए तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। किस तरह से आप एक्सरसाइज के माध्यम से, वॉक के माध्यम से बाहर निकल नहीं सकते, घर पे ही आप कैसे करेंगे, वो आर्टिकल से कैसे आप अपने विचारों को परिवर्तित करेंगे, इसको लेकर के क्विज छापनी शुरू कर दी, इस तरह के कॉलम्स छापने शुरू कर दिए, जिनके माध्यम सक्सेस स्टोरीज, जिन लोगों ने कोरोना को हराया। एक उस दौर की बात सोचिए आप, जब व्यक्ति ठीक होकर आता था, फूल उछाल करके स्वागत किया जा रहा है, क्लैपिंग करके स्वागत किया जा रहा है। हॉस्पिटल में जो हमारा हेल्थ केयर स्टाफ है, वो किस तरह से म्यूजिक के साथ डांस कर करके लोगों के मनोबल को बढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए उन सारी वो कवरेज भी की है उसने। 2 स्थितियां हैं, मीडिया पर अक्सर आरोप लगता है कि मौतों को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, लगातार रोते चीखते लोगों के दुख और पीड़ा हमें एक भयग्रस्त कर देती है, हमें तोड़ देती है, हमारे मनोबल को तोड़ देती है। देखिए, मैं इसको 2 दृष्टि से देखता हूँ। ये सही है कि कहीं एक सीमा रेखा होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे वो भी तो देखिए आप, यदि आप उन चीजों को नहीं बताएंगे, तो यदि आप चीजों को ढंग से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो वास्तविकता का कैसे मालूम पड़ेगा आपको? आप सही तथ्यों के बारे में जानकारी कैसे देंगे? यदि आंकड़ों को छिपाया जाता है, सरकार की रक्षा कर सकते हैं आप, लेकिन मुझे लगता है जनता के साथ अन्याय होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज कई अखबारों ने, टीवी चैनल्स ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के, शमशान घाटों में जाकर के बाकायदा बताने की कोशिश की है कि मृत्यु के सही आंकड़े नहीं हैं। आप कैसे अपनी नीतियों को निर्धारित करेंगे? अक्सर उदाहरण दिया जाता है अमेरिका का, जब अमेरिका पे आतंकी अटैक हुआ था, वो जो उतनी बड़ी बिल्डिंग थी उनकी, और उस पर किस तरह से वो जहाज को टकरा दिया, हजारों लोग मर गए, लेकिन अमेरिकन टीवी चैनल ने लाशों के ढेर नहीं दिखाए। हमारे यहाँ दिखा रहे हैं। इसको लेकर के अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस घटना की भयावहता को दिखाने के लिए यदि हम नहीं दिखाए तो हम सतर्क कैसे होंगे? अभी भी जब हम देखते हैं, मैं कई बार अपने घर की बालकनी पे बैठ के देखता हूँ, अभी भी लोग सड़क पे जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं एक सामान्य स्वास्थ्य के परीक्षण कराने के लिए जब वहां गया डिस्पेंसरी में, लैब में, मैं जब खड़ा हुआ उसको पेमेंट कर रहा हूँ, एक व्यक्ति आता है, सीधा मेरे से आगे आकर के अपना हाथ उसमें डालता है, वो जो काउंटर है। मैंने उसको निवेदन किया, बंधु, आज 1.5 साल से ये बात सिखाई जा रही है आपको कि डिस्टेंस की रखिए। आप जब एक जना खड़ा है तो आप मत एक दूसरे पर गिरने की कोशिश कीजिए। तब सॉरी बोल करके वो 3 कदम पीछे हटा। कहने का मतलब ये, हम इतने आतुर हैं, वो उस भयावहता का एहसास हमको नहीं होगा। हम सतर्क कैसे होंगे, कैसे हम अपने आप को नियंत्रित करेंगे, ये हमारे सामने चुनौती है, जबकि लगातार मीडिया इस बात को उठा रहा है। कल्पना कीजिए किस तरह से उन संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर के रिपोर्टिंग की जा रही है। कैसे जब एक 24 साल की युवती, जब उसके ससुर, उनको हॉस्पिटल से कोई ले जाने वाला नहीं मिला, वो दोनों कोरोना पेशेंट, और देखिए शायद एक बेटे की तरह से उसने अपने ससुर को कंधे पे लादा और 2 किलोमीटर चल के गई है उस ऑटो रिक्शा में उनको बिठा करके हॉस्पिटल ले जाने की। इन सारी स्टोरीज को जिस तरह से मीडिया ने
आप कल्पना कीजिए उनकी वो जो प्रवासी मजदूर थे उनकी पीड़ा को, वो अपने कल के डर में पैरों के छाले भूल गए। उन प्रवासी मजदूरों की व्यथा और पीड़ा को जिस तरह से मीडिया ने उठाया, सरकार को मजबूर होकर के श्रमिक एक्सप्रेस चलानी पड़ी, नीतियों को परिवर्तित करना पड़ा। टीकाकरण की जो विसंगतियां थी उनके बारे में जिस तरह से डिबेट चलती है पूरी की पूरी, तो मुझे लगता है मीडिया ने बहुत प्रभावी ढंग से भूमिका का निर्वाह किया। कुछ अपेक्षाएं जो मेरी मीडिया से रही हैं, अक्सर चूंकि सिन्हा जी स्वयं एक वैज्ञानिक हैं, इतने इनके शोध पत्र देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में छपे हैं, मीडिया से जो मेरी अपेक्षा है, मैं मान के चलता हूं कि शायद सिन्हा साहब मेरी बात से सहमत होंगे, जब हम कोई रिपोर्ट छापते हैं वैज्ञानिकों के अनुसंधान की, सबसे प्रमुख आवश्यकता यह है कि हमें ये उसमें जानकारी देनी चाहिए जिसको कई बार मैं मिसिंग देखता हूँ। मैंने तो यूनिसेफ के हेल्थ कम्युनिकेशन के कुछ कोर्सेज भी अटेंड किए थे। बार बार इस बात पर स्ट्रेस दिया जाता है कि आप सही सोर्स की जानकारी दें। वो जानकारी जो आपने रिसर्च की है व्यक्तियों के हेल्थ को लेकर के, वायरस को लेकर के, यदि वो हवा में है, वो रिसर्च कहाँ पे की गई है, कौन से हॉस्पिटल में की गई है, वो जो डेटा कलेक्ट किया गया है कौन से हॉस्पिटल में किया गया है, कितने सैंपल लिए गए, क्या आपने हॉस्पिटल से 3 किलोमीटर दूर जाकर के भी डेटा लिया है? क्योंकि हॉस्पिटल में तो जब संक्रमित लोग हैं तो वहां तो संक्रमण हवा में होगा ही होगा, लेकिन संक्रमण का प्रसार कितने दूर तक है, कौन से जर्नल में छपा है, वो जर्नल रिव्यूड है, पीयर रिव्यूड है कि नहीं है, ये सारी जानकारियां उसकी होनी चाहिए, तभी उसकी विश्वसनीयता और ऑथेंटिसिटी होती है। तो फिर किस तरह की शब्दावली, साइंटिस्ट वो मीडिया का व्यक्ति नहीं है, उसकी अपनी शब्दावली है, किस तरह से हम सामान्य बोलचाल की भाषा में लोगों को समझा सकते हैं, इसकी और भी मीडिया कर्मी भी कोई प्रशिक्षित साइंटिस्ट तो नहीं है, लेकिन चूंकि हेल्थ जर्नलिज्म, साइंस कम्युनिकेशन की उसकी ट्रेनिंग होगी। कौन सा वायरस है, अभी जैसे बात आई इंडिया का वायरस, सरकार ने भी आपत्ति की, अब हम उसको कहने लगे डेल्टा वायरस। तो सवाल यह है कि वो वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका क्या नाम है, किस तरह से हमको अखबारों में लिखना है, इन चीजों को ध्यान में रख। देखिए नए शब्द कोरोना ने हमको दिए, आइसोलेशन और क्वारंटाइन। कई बार मैं टेलीविजन पर देखता हूं न्यूज, फलाने प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है, या वो नेगेटिव है रिपोर्ट तो आइसोलेट कर लिया है। अब आप डिक्शनरी में जाके देखिएगा, क्वारंटाइन का मतलब होता है आप संक्रमित नहीं हैं, आप पर संदेह है। मैं यहां से जाता हूं, आपके स्टेट में आता हूं जहां अनिवार्य है कि मुझे आते समय कोरोना की रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे क्वारंटाइन किया जाएगा। ये आशंका है कि जो व्यक्ति आ रहा है वो अपने साथ वायरस लेकर के आ सकता है, कंफर्म नहीं हुआ है क्वारंटाइन में। जब आप कंफर्म होकर देते हैं कि ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव, तब आप आइसोलेशन में जाएंगे। एसोसिएटेड प्रेस, मीडिया के विद्यार्थी जानते होंगे कि एक अमेरिका की बड़ी एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस, उसने बाकायदा एक इस तरह की वो बनाई, एक स्टाइल बुक बनाई है कि आप किस तरह शब्दों का प्रयोग करें। हमने भी यूनिसेफ के साथ एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, अभी कुछ मित्र हमारे काम कर रहे हैं उसके ऊपर, कि भारतीय भाषाओं के लिए, विशेषकर हिंदी और अंग्रेजी सहित भारतीय भाषाओं के लिए भी इस तरह का एक स्टाइल बुक बनाई जाए। आप बहुत सारे रेड जोन, येलो जोन, पिंक जोन, फलाने जोन, क्या क्या अभिप्राय है सर, कंटेनमेंट जोन, लॉकडाउन, कितने नए शब्द दे दिए हमको। इधर आप देखिए जनसत्ता वो शुद्ध हिंदी प्रयोग कर रहा है, जब केजरीवाल कहते हैं और इवन रूप में दुकानें खुलेंगी, जनसत्ता लिखता है सम और विषम दुकानें खुलेंगी, वो लिखते हैं पूर्णबंदी होगी, लॉकडाउन नहीं लिख रहे हैं, वो क्वारंटाइन नहीं लिखते हैं, वो एकांतवास लिख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि नए नए शब्द दिए तो मीडिया नए शब्दों को प्रचारित करता है। मीडिया क्योंकि जब ये वायरस आया पहले तो हम जानते ही नहीं थे इसके बारे में, तो इसकी भयावहता को बताने के लिए, इसकी उस घातकता को बताने के लिए हम नए शब्द कॉलिंग करते हैं, और अपने माध्यम से इनका जब प्रचार होता है तो ये शब्द जन जन के बन जाते हैं। फिर जब हमारी आर्थिक स्थिति जिस तरह से डावाडोल हुई, वो सारी इंडस्ट्री, चाहे वो एजुकेशन है, मीडिया इंडस्ट्री पे तो लाखों डॉलर, आप कल्पना कीजिए फिल्म की शूटिंग बंद होगी, क्योंकि जब आप घर में हैं आप कब तक न्यूज देखेंगे, आपको एंटरटेनमेंट चैनल भी देखना है, शूटिंग बंद हो गई, आप वही पुरानी चीजें देख रहे हैं, वापस पुरानी चीजें दिखा रहे हैं आपको।
ऐसे दौर में OTT प्लेटफॉर्म जैसी चीजें आ गई, पहले भी थी लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर हो गई। अब फिल्में OTT पर रिलीज हो रही हैं, वेब सीरीज आ गई, तो एंटरटेनमेंट के नानाविध चैनल आपके पास आ गए और उधर शूटिंग बंद हुई, कितनी बड़ी इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ा। जब एक शादी आपने रोक दी कि आप 10 जने या 20 जने शादी करेंगे, तो आप सोचिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री प्रभावित हुई। प्रिंटिंग प्रेस जो कार्ड छाप रही है, कैटरिंग सर्विसेज, फिर वो जो बैंड बाजा वाले हैं, वो ज्वेलरी, पूरा का पूरा एक चक्र है इसके साथ जुड़ा हुआ, सेम मीडिया के साथ। क्योंकि जब आप जाते हैं उन क्षेत्रों में जो मीडिया के, उसमें जो एडवर्टाइजिंग की दुनिया है, शूटिंग की दुनिया है, उसमें वो लैब, वो जो वो उठा के लाता है ना आपके क्रेन वगैरह, वहां से लेके स्क्रिप्ट राइटर हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, कैमरामैन है, स्पॉट बॉय है, न जाने कितने लोग हैं जिनकी आजीविका खतरे में पड़ गई थी। तो इसके साथ पूरी की पूरी इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। फिर एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू चला गया मल्टीनेशनल से, जो हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स आ गए, गूगल और ट्विटर जैसी जो कंपनियां थी, हमारा सारा का सारा जो विज्ञापन का बहुत बड़ा हिस्सा था वो वहां चला गया। अब अखबार क्या करे? अखबार, आपको तो अखबार ध्यान होगा, फर्स्ट वेव में अखबार को हम हॉकर को देखते ही लोग कहते थे घर में मत घुसना, बाहर रहना। अखबार लेने बंद कर दिए। अखबार के हाथ लगाया नहीं कि लगेगा हम संक्रमित हो जाएंगे। अखबार के डिजिटल एडिशन आने शुरू हो गए। फिर न्यायालय ने कहा कि आप सोशल मीडिया पर डिजिटल एडिशन सर्कुलेट नहीं कर सकते, वो बंद हुए। हालांकि टेलीग्राम पर उपलब्ध है अभी भी। अब जब अखबार भी आपको डिजिटल उस पर मिल रहे हैं तो अखबार की बिक्री बंद हो गई, उसका असर हमारी नौकरियों पर आ गया। अब मेरा एक निवेदन है कि इस मीडिया इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमें एक नया बिजनेस मॉडल तैयार करना पड़ेगा। आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, किसी भी यूनिवर्सिटी में लीजिए हिंदुस्तान में, कहीं फ्री एजुकेशन नहीं है, पैसा देना पड़ता है। आप बाजार जाते हैं, खाने पीने की चीजें फ्री नहीं मिलती हैं, पैसा देना पड़ता है। आप कपड़े पहनते हैं, पैसा देना पड़ता है। जब आप जीवन के हर पक्ष के लिए खर्च कर रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप, सूचना प्राप्ति के लिए हम क्यों नहीं खर्च करते हैं? यदि आपको विश्वसनीय और सही सूचना चाहिए तो हमें एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करना पड़ेगा कि हमारे मीडिया हाउसेस केवल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पर निर्भर नहीं रहे, हम भी उसके लिए पे करें। इसलिए अखबारों ने अपने डिजिटल एडिशन को पेमेंट कर दिया। यदि आपको सब्सक्राइब करना है तो उसकी जो मंथली फीस है वो पे कीजिए आप, तब अखबार आपको उपलब्ध होगा। जब वो गांधी जी ने कोशिश की थी अपने जमाने में, लेकिन आज बड़ा चैलेंजिंग काम है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें यदि सही, सटीक और विश्वसनीय सूचनाएं चाहिए तो उस बिजनेस मॉडल पर भी विचार करना होगा। ये भी आजकल एक धारणा जो है वो प्रचलित होने लग गई है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से मीडिया इंडस्ट्री प्रभावित हुई है, कई बार बात की गई, सरकार से अपेक्षाएं की गई कि साहब जिस तरह से राहत पैकेज दिए जा रहे हैं इस इंडस्ट्री के लिए भी दिए जाए, क्योंकि कमर तोड़ दी है जब सारी आपकी एक्टिविटीज बंद हो गई हैं, तो यहाँ भी उसका इतना प्रभाव पड़ा है। और इतनी बड़ी अपेक्षाएं हैं, ये भी एक फ्रंट वॉरियर की तरह से ही इन लोगों ने भी काम किया है। तो ऐसी स्थिति में ये इनसे अपेक्षाएं की गई कि इनके लिए भी इस तरह का एक राहत पैकेज, या जिन पत्रकारों की मृत्यु हुई है उनको भी कोई इंश्योरेंस या जिस तरह से और जगह लाभ दिया गया है, वहां भी इनको कहीं इस तरह की राहत जो है वो देने की कोशिश की जाए। कुछ प्रदेशों की सरकारों ने कोशिश की है, कई जगह इस तरह के विचार चल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में इस पर कोई निर्णय लिया जाए। मुझे लगभग पौन घंटे के लिए कहा गया था बात करने के लिए। मुझे लगता है कि जो समय मुझे दिया गया था उस पर मैंने, विषय बहुत लंबा है, बहुत कुछ बात हो सकती है, क्योंकि इसके बहुत सारे संदर्भ हैं, है ना। बस लास्ट में एक बात और कहूँगा जो अचानक मुझे ध्यान आया कि सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ आ रही है, मेरा सभी विद्यार्थियों से विशेष अनुरोध है कि वो किसी भी समाचार को बिना पुख्ता किए हुए नहीं भेजें। आजकल तो मेरे ख्याल हो सकता है आपके यहाँ भी ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हों, नहीं होंगे तो आप कर सकते हैं। गूगल ने पिछले वर्षों में बाकायदा देश भर में इस तरह के ट्रेनर तैयार किए हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि किस तरह से आप फेक न्यूज़ का पता कर सकते हैं। आपने देखा होगा अभी लोकसभा की पूर्व स्पीकर के निधन की सूचना एक बड़े पत्रकार ने ट्विटर पे डाल दी जबकि वो जीवित थी। अभी जयपुर के हमारे एक बहुत बड़े न्यूरो सर्जन थे डॉक्टर अशोक पानीगढ़िया, उनकी डेथ की खबर चली गई। सोशल मीडिया पे लोगों ने श्रद्धांजलि भी दे दी जबकि उसके करीब 10-12-15 दिन तक वो जीवित रहे थे। तो हम जब तक आश्वस्त नहीं हो जाए, प्रामाणिक जो हमारे स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उनसे जब तक हम आश्वस्त नहीं हो, किसी भी खबर को आप मत भेजिए। तो फर्क नहीं पड़ जाएगा, 5 मिनट बाद सूचना पहुंच जाएगी।
और फेक न्यूज़ के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने अपनी वेबसाइट पर इस तरह के प्रोविजन किए हैं कि वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं PIB की वेबसाइट पर जाकर के। टीवी चैनल्स हैं, इन्होंने भी इस तरह के अपने प्रोग्राम्स तैयार किए हैं। अखबारों ने भी इस तरह के बाकायदा अपने ऐप के माध्यम से जो इस तरह की खबरें आ रही हैं। आपने सुना होगा कि किसी साइंटिस्ट को कोट करके कहा गया कि अगले 2 साल में पूरी दुनिया सब खत्म हो जाएगी, ये वैक्सीनेशन सब खत्म कर देगा, ये लोगों की जान पर बनाएगी। ऐसी खबरें गुमराह करती हैं और समाज की जो एक सद्भावना है उसको भी प्रभावित करती है। ये नई जब चुनौती आती है, नए विकल्प आते हैं तो अपने साथ 4 खतरे लेकर के भी आते हैं। लेकिन अब सरकार ने भी कोशिश की है, सोशल मीडिया की गाइडलाइंस जारी की हैं, उनसे कहा गया है कि अपने शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कीजिए। ट्विटर और सरकार के बीच में जो टसल चल रही है आप देख ही रहे हैं, वो सही है गलत है फिर डिबेट हो सकती है, इसको लेकर के भी बहुत चर्चाएं हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के। लेकिन जब जब नई तकनीक आती है, नए खतरे लेकर के आती है, जब हम आपकी उम्र में थे, पढ़ते थे अपने कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तब हम डिबेट के जो विषय हमको दिए जाते थे वो दिए जाते थे कि टेलीविजन ने युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है, टेलीविजन ने हमारी अभिरुचियों को कुत्सित कर दिया है। ना हमारी अभिरुचियां खराब हुई, ना युवा पीढ़ी बर्बाद हुई, जैसे हैं आपके सामने है। लेकिन अब कोई टीवी को इडियट बॉक्स नहीं कहता है, टीवी को कोई मैजिक बॉक्स नहीं कहता है। जो टीवी कभी प्रदर्शन की वस्तु थी, हमारे ड्राइंग रूम में थी, हमारे बेडरूम में घुस गई है। यही हाल सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी ताकत आपको दी है, जिसके माध्यम से आप दुनिया के उस हिस्से में पहुंच सकते हैं, सारी भौगोलिक दूरियों को तोड़ते हुए, जहां आपकी भाषा को जानने वाला है, आपकी बात में, आपके विचारों में यदि मौलिकता है, रचनात्मकता है, तो आप पूरे के पूरे समुदाय को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, एक वैचारिक नेतृत्व दे सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत हमारे पास आ गई है। अभी तो 4G है, कल 5G हमारे पास आने वाला है, परसों 6G भी आएगा। हम कल्पना नहीं कर सकते वो दुनिया किस तरह की होगी। इन सारे खतरों के बीच में से इसमें जो रचनात्मक है उसको हमें निकालना है। ये सारी शक्तियां आसुरी और दैविक सदा हमारे साथ रहेंगी। हमें जो सकारात्मक शक्तियां हैं उनका साथ देकर के अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करना है। इन सारी चुनौतियों के बीच में पत्रकारों पर, आप जैसी पीढ़ी जो पत्रकारिता में जाना चाहती है, उसके लिए आवश्यक है कि वो मल्टीटास्कर बने, क्योंकि आज टीवी की दुनिया, मोबाइल, अखबार प्रिंट प्रेस से निकल करके मोबाइल में आ गया है। आपके मोबाइल में सब कुछ है, रेडियो भी है, टीवी भी है। परसों किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया, 19,000 सॉन्ग्स भेज दिए, गाने भेज दिए मुझे। आपके पास भी आ गए होंगे, मैं कोई निराला नहीं हूं कि मेरे पास ही आए हैं। तो उस एक लिंक पे आपके पास पूरी दुनिया समा गई है। कितनी फिल्में आपको मिल जाती हैं। तो अभी तो बहुत कुछ हमको देखना है, और आप तो अभी बहुत युवा हैं, बहुत पूरी पारी आपके जीवन के सामने पड़ी है। आने वाला समय आप उसी उमंग उत्साह से, इस शुभकामना के साथ कि इस देश में तीसरी लहर का सामना हम नहीं करें, जीवन फिर सामान्य गति से दौड़ने लगे, ताकि कभी मैं बॉम्बे आऊं, आप कभी जयपुर आएं, आमने सामने बात करें चाय की चुस्कियों पे, लंच और डिनर के ठहाकों के बीच में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई सवाल हो तो आप मुझे। Thank you so much, sir. This was very enriching and knowledgeable session. I am sure the students have learned from your experience, and few of them might have some doubts which they would like to ask you. Till then, they prepare their question. I would like to call our Vice Chancellor, Dr. A.K. Sinha, to have some words. Dhanyawad. Thank you very much. At the outset, I must thank my esteemed colleague, Dr. Sanjeev Bhanawar ji. We are very grateful to you, sir, that you accepted our invitation to speak on this role of media during the COVID-19. I think our colleagues have identified a very right person. No person could have been better than you to speak on this issue. I know your expertise. Everybody knows your expertise. And we had the opportunity to be together, to work together for quite long time. And I really am very happy to see you, meet you virtually at least. I wish we could meet, sometime physically, one-to-one. We share dias physically also. So well, your speech on this issue
have highlighted many facets of the media about which our generation, younger generation particularly, have remained ignorant, or maybe they have some biased opinion about the media, but no denying about it that during this pandemic which the humanity suffered after 1980, this is the worst pandemic which we have experienced, the world has experienced. But thanks to media that despite being isolated, despite being confined to the four walls of our houses, we were in touch with everything which was going outside, which was happening in a different parts of the world, which was happening in different parts of our country, even which was happening in the vicinity of our houses. So media did a wonderful job. Of course, our dependency on print media was reduced to a great extent, but electronic media never remained silent. It worked day and night to keep us informed, to keep us guided, and helped a large number of people to follow the protocol of COVID-19. The constant display of this message given by our Honorable Prime Minister, to wear mask and to maintain social distancing, was displayed and always, and this made everybody conscious about it, so that health of large number of people, the life of large number of people could be saved. To wash your hand repeatedly, because it was constantly displayed, and this got ingrained in the mind of everybody that we have to wash our hand. Whenever we do something, we must wash our hand. We must wear mask even if you go beyond the precincts of our door, and outside. We maintain distancing when we happen to be with few people. So all this was constantly, displayed and on the media, on TV channels, and this got ingrained in our mind, and we followed it. We were made to follow it, and that's helped us a lot. That helped the people to save their life. So the media played a very big role in promoting or safeguarding the health of the people. Not only that, our front-runner media person, they went in the rural areas, risking their life, and brought to the notice of the government and all the policy makers the lapses in the health sector. Many hospitals, buildings are there, but without doctor, without any health facilities. All such things were disclosed. People came to know about such things. Even the government was not knowing many things which were made public, and because of the media, very effective role, very active role, that government realized those policy mistakes, lapses, and corrected it very timely, so that the health facilities could be extended to even rural areas, and many urbanites also who were deprived because of the lack of information, they got it. So no denial about this, and rather we must appreciate. We are full of appreciation
I mean, we are really highly indebted to the media people and the media who always focused on the issue of safeguarding the health. I mean, the media not only focused on the health sector, but all the aspects related to health sectors were, covered by the media, whether it is a research in the medical sciences going on in some part of the country or other countries, or in India, development of vaccination, even the availability of the vaccines to different group of people. All these were always hammered on the TV channel by the media people, and which really made conscious the user also and the provider also. So this, I mean, the media has, did a great job during this period, and all informations and it was good. I mean, disseminated in such a efficient manner that has unparalleled in history, I should say. But of course, I mean, people say that sometimes there were exaggeration, which created some emotional setback to the viewers or to the users of the media. Okay, that happened, and that also led to some dictums by the WHO that okay, you should not see your TV channel more than half an hour or 1 hour, like that. This type of things happened. But yes, don't forget, there's such a movement, such a big movement by the media to safeguard the humanity may have some lapses here and there, but that need to be ignored. People need to understand these issues, and the full of, I mean, people all appreciate the way they have played their role so effectively. Rather, they have set certain precedents, which even after this COVID is gone, people will follow in the future also. That some media's role has affected positively the lifestyle of the people. People will now realize what is the importance of frequently washing your hands, keeping yourself neat and clean, keeping yourself well informed about your health and hygiene. All this have to be, this I understand this will be followed for a long time by our younger generation, and to safeguard their health and their family health. So, well, the time is very short, and I'm not well versed with the media, and all the aspects of the role of media has been covered by our esteemed colleague, Professor Bhanawat ji, and I appreciate what he has said. I agree with him that media did a wonderful job. But yes, whatever the criticism is there, that should be taken lightly, understanding the burden on the media during this period. The huge burden which was there which is there on the media. Sometimes everybody is bound to, but this is understandable. We should also understand, and we should take all the informations very rationally, and we should accept after due rationalization of all the information which is provided. With this, thank you very much. I once again thank Professor Bhanawat to be with us, to spare his valuable time, to give his such a good sermon on this occasion. So thank you very much, Professor Bhanawat. We wish we could meet more. We invite you
very frequently on various issues because you are such a learned person, and your sermon, your talk will be always useful for our students, our younger colleagues. Thank you very much. And I thank all the participants and listeners. And I also thank my colleague, Sushma Madam, for undertaking this program, organizing so efficiently, and inviting a person not less than of stature of Professor Bhanawat. So thank you very much. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, A.K. Sinha, sir. Good afternoon, everyone. I am Bijuri Varanju. I am first year student of BJMC. Sanjay sir, we have some students' question to ask you. So, can I? Sure. Yes, sir. So, my first question is, what is the FDI doing to respond to the COVID-19? FDI? Yes, Food and Drugs Academy. Food and Drugs Academy? Yes. मुझे इसका आइडिया नहीं है कि what they are playing. Food and Drugs Academy is the medical institution, I think. Okay. So, what is FDI? FDI for us is the foreign direct investment. मीडिया में जो विदेशी पूंजी का निवेश हो रहा है, हम तो उस तरह से देखते हैं FDI को. Okay. है ना? आपके मन में क्या है? What is FDI? First you tell me what is FDI. Food and Drug Administration. Food and Drug Administration. Yes. देखिए, वो तो ये हो गया फिर कि वो जो हमारा इस तरह की एजेंसीज हैं जो कालाबाजारी हो रही है, मेरे ख्याल उससे लेना देना मतलब है आपका. जो रेडस्मीर के इंजेक्शंस हैं या ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, इनको लेकर इसको कंट्रोल करना है, तो वो तो देखिए जहां भी इस तरह की जानकारी मिलती है तो जो हमारी लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनको शिकायत मिलती है, उनको जानकारी मिलती है, उनके जो भी इस तरह के सोर्सेज हैं उनसे जानकारी मिलती है, तो वो उसके लिए कोशिश करते हैं. जो भी इस तरह के व्यक्ति हैं उनको ट्रैप करते हैं और कानून के हिसाब से कार्रवाई करते हैं. और मीडिया जो है ऐसी चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है. जहाँ तक क्योंकि अपना विषय मीडिया के रोल की बात है, तो जहाँ का ब्लैक फंगस को लेकर कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई, ये मीडिया ही है जिसने इन सारी चीज़ों को, बल्कि आप तो शायद इस समय पता नहीं बॉम्बे हैं या कहाँ बैठे हैं, जयपुर के अखबारों ने बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन किया. कुछ टीवी चैनल्स में देख रहा था, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया कि इस तरह से कौन से व्यक्ति हैं जो ये सारी हरकत कर रहे हैं, गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं. बाकायदा उनको टेलीफोन कॉल किए और उनको ट्रैप किया, और फिर उसके बाद जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो जो हमारी एजेंसीज हैं, लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, वो अपने हिसाब से इसकी कार्रवाई करेंगे. तो जो जिसकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करे. इसीलिए मीडिया ऐसी चीज़ों को उजागर करता है. मीडिया अपने आप में कुछ नहीं कर सकता. मीडिया उन चीज़ों को हाईलाइट करता है. सामाजिक विद्रुपताएं, व्यवस्था में जो गड़बड़ हो रही है, उनको वो हाईलाइट करता है ताकि जो एजेंसीज हैं वो अपने काम को और प्रभावी ढंग से कर पाए. अच्छा काम कर रही है, उनकी तारीफ करेगा कि भाई हाँ, कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है. उनके जो एडिटोरियल्स लिखे जाएंगे, उन पे जो आर्टिकल्स छपेंगे. तो इस लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा लोकतांत्रिक समाज है, उसमें सभी तरह के विचारों का सम्मान होना आवश्यक है. जो पक्ष है जिस पर आपने आरोप प्रत्यारोप किए हैं, वो एजेंसीज काम नहीं कर रही हैं, उनकी बात भी आती है कि उनकी क्या चुनौतियां हैं, उनके सामने क्या समस्याएं हैं. और जब मामला अदालत में जाता है तो वहाँ जो भी हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसके हिसाब से उनको सजा दी जाती है. Okay. So my next question is, what is a particular strength of media are highlighted during the such a difficult time? स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है साहब. मैं तो आपको इतने समय से यही तो बता रहा हूँ कि मीडिया कितनी बड़ी पावर के रूप में. जब हम लोग दिग्भ्रमित थे, हमें कुछ नहीं पता था कि घर से बाहर निकलते हुए डर लगता था. मेरे ख्याल आपके पेरेंट्स टोकते होंगे आपको कि बाहर मत जाना, गेट के हाथ मत लगाना. ये स्थिति थी ना. अब आप जब उस स्थिति में आ गए, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, आपके फ्रेंड से बात नहीं कर पा रहे हो, पड़ोसी से मिल नहीं पा रहे हो, किसी को सामने देखते दूर भागते हैं. इस दौर में आ गए थे तो हमारे उस कौन आपको इंफॉर्मेशन देगा कि देश में क्या चल रहा है, क्या नए इनोवेशंस हुए हैं, मेडिकल डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ इलाज की सुविधाएं हैं,
कहाँ बेड खाली है, कहाँ बेड खाली नहीं है, कौन जानकारी दे रहा है आपको? मीडिया दे रहा है। मीडिया। यही सबसे बड़ी मीडिया की स्ट्रेंथ है। मीडिया की 3 बेसिक चीजें हैं, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू एंटरटेन। ये 3 चीजें हैं मीडिया की, ये स्ट्रेंथ है उसकी। इसमें वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है, ये आप लोग मीडिया के कंज्यूमर हैं, आप लोग बताएं क्या महसूस करते हैं, कहाँ कमियां हैं, है ना? Thank you sir for answering our question. और कोई? No, ma'am. Anyone ask for questions to sir? Inbox is open, so you type your question. That's it, sir. Thank you. Thank you for answering our question. Thank you. Thank you. It is a great honor and privilege to propose the vote of thanks for this webinar. This was a really enlightening session. I'm confident that the student must have learned a lot and will be benefited by this. On behalf of CSMU, I would like to thank Bhanavas sir for providing his valuable time and knowledge to us. We will look forward for many more sessions in future with you, sir. Right, I would like to thank Dr. Keshav Badaya, the President of CSMU and Secretary of Saint Welfare Education Society, for providing us the platform and means to hold such a webinar. I also want to express my gratitude to Dr. A.K. Sinha, the Vice Chancellor of CSMU, for providing all the facilities for this webinar. All express my gratitude to Dr. A.R. Sharma, Registrar of all the support, full support. I also express my heartiest thanks to Aniruddha Sakhare sir, H of Department, Arts and Humanities. I also grateful to Mrs. Sushma Sharma, Head of Department of Journalism and Mass Communication, for organizing this knowledgeable webinar. I want special gratitude to Head of Department CS and IT, Dr. Manish Kumar Verma, and Engineer Mrityunjay Kumar, and all the faculty members and who has worked hard to ensure that this webinar become a memorable success. Once again, thank you all for joining us this webinar. Have a good day. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय निकाला हम लोग के लिए। हमारा बहुत ही ज्ञानवर्धन हुआ है, बच्चों का भी। तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी हमेशा आप हमारा ज्ञानवर्धन करते रहें, मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir. Thank you.